to another video on strategic management, and in this video we'll be concerning कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हमें समझना है कि एक्चुअली कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या होता है. इतने टाइम से हमने लास्ट सो मेनी वीडियोस वी आर टॉकिंग अबाउट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. सो दिस वीडियो विल अंडरस्टैंड क्लियरली व्हाट इज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. ओके, सो दिस वीडियो आप सबसे पहले ये समझो कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या होता है. एक सीधी सी नॉर्मल सी बात है कि एक एडवांटेज है, एक एडिशनल पॉइंट है, एक बेनिफिट है जो आपको अपने कॉम्पिटिटर्स के ऊपर है. मतलब ऐसी चीज जो आपके पास और आपके कॉम्पिटिटर्स के पास नहीं है वो होगी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. सो इट इज एन अचीव्ड एडवांटेज ओवर योर कॉम्पिटिटर्स और राइवल्स, जिसकी वजह से सिर्फ अब आपका जैसे आप यू आर बेटर देन योर कॉम्पिटिटर्स, तो उसका कैसे पता चलेगा? व्हेन योर प्रॉफिटेबिलिटी इज ग्रेटर देन द एवरेज प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म्स. That means I can say that profitability of your company is greater than the average profitability of the industry. Then your competitive advantage is actually a competitive advantage. Okay, so तीन बातें ध्यान रखना. competitive advantage कभी भी पूछा जाए कि क्या होता है कि एक achieved advantage है. advantage word नहीं यूज करना चाहते हो तो यूज कर लेना. it is a benefit, it is an additional quality, it is an additional utility that your product has, or additional advantage, additional feature, additional thing that you have over your rivals or competitors, है ना, that leads to higher company profitability. Okay, clear? ये तीन बातें लिख दोगे तो competitive advantage completely लिखा जाएगा. फिर मतलब इससे क्या होता है? सुपीरियर परफॉर्मेंस होती है आपकी, बेटर परफॉर्मेंस होगी, आपकी प्रॉफिट्स ज्यादा हो रहे हैं, आपकी परफॉर्मेंस बेटर होगी. देन in order to be successful you need to articulate the benefit you provide to your target market that's better than the competition. और जो benefit आप target market को provide करते हैं इसका मतलब क्या है? value जो आप provide कर रहे हो अपने market को, it's better than the competition. so वो आपका competitive advantage होगा. देखो सीधी सी बात है, आपका ऐसा एडवांटेज जो राइवल्स के ऊपर है और जो आपकी हाई प्रॉफिटेबिलिटी दे रहा है वो किसी वजह से आपकी वैल्यू की वजह से होगा. आपने अपने प्रोडक्ट में ऐसी वैल्यू अटैच की है जिसकी वजह से कंज्यूमर दूसरे के प्रोडक्ट्स को छोड़ के आपके प्रोडक्ट को खरीदे. ओके, so that is your competitive advantage. Whenever you are asked competitive advantage, just write this and you will get marks. Okay, now एक बहुत अच्छी quote है, if you don't have competitive advantage, don't compete, because there is no sense of competing if you don't have the competitive advantage. Well, I would like to change it slightly, that if you don't have a competitive advantage, then get one. Then quitting the competition, you should get one. You should try to acquire the competitive advantage. This is what life is all about. If you don't have something, you should actually aspire. You should actually aim for it. You should actually try for it. जैसे महात्मा गांधी का एक बहुत प्यारा quote I would like to mention here, that if you are trying for a task, एक ऐसा task जिसकी आपकी कोशिश कर रहे हो और आप में अभी उसे पाने की कैपेबिलिटी नहीं है, लेकिन अगर आप में विश्वास है कि आप वो कर सकते हो और आप उसे करने की कोशिश कर रहे हो, तो by the end you will actually gain that capability to do the task. और एक ऐसी सिचुएशन जिसमें आपके पास एबिलिटी तो है, आपके बिगनिंग में भी एबिलिटी है, लेकिन आप में इतना विश्वास नहीं है कि आप वो टास्क अचीव कर सकते हो, आप उतनी कोशिश नहीं करते हो उस टास्क को अचीव करने की, तो बाय द एंड यू विल लूज दैट एबिलिटी टू अचीव दैट टास्क. So what I am trying to say here is believe in yourself, have faith in yourself, have faith in whatever you are doing. So don't leave the competition, rather you should acquire the competitive advantage. Okay, this was about the competitive advantage. Now let us see why do we need a competitive advantage. Of course, for the superior performance, for success, to gain an edge over rivals, and for higher profits, etc. So how can we have the competitive advantage? तो पॉर्टर ने तीन स्ट्रैटेजी दी है, बहुत ही प्यारी और बहुत ही इंटरेस्टिंग. जो है कॉस्ट लीडरशिप, मतलब आपका कॉस्ट लो हो, जैसे चाइनीज कंपनीज है वो कॉस्ट लो रखती है. उसका रीजन क्या है? बिकॉज वहाँ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत लो है, सो दे कैन बी एक्चुअली गेट अवे बाय गिविंग लो वेजेस. सेकेंडली वहाँ पे वेजेस बहुत लाइक देयर लेबर इज चीप, बहुत सारे लेबर है, पॉपुलेशन ज्यादा है, लेबर क्लास ज्यादा है, तो दे कैन इजीली मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स एट लो कॉस्ट. Then differentiation. Differentiation means your product has something great in it that consumer wants to buy it. Like Apple. Apple has always something great, good in it. एक innovation होता है, like the iPod it came with. So there is some innovation in the product. There is something you are giving, something extra, something different, some kind of loyalty you have with your product.
that is differentiation. Then comes focus. You are very focused to your target market. You are fixed कि तुम्हारा target area यही है जिसको तुम्हें target करना है, whether it is like rich class, whether it like middle class or a low class. आपको कौन सी क्लास में टारगेट करना है, एज ग्रुप आपका फिक्स है कि आप कौन से एज ग्रुप को टारगेट कर रहे हो, तो उस टारगेट एरिया पे यू आर कंप्लीटली फोकसिंग दैट यू आर गिविंग योर प्रोडक्ट्स फॉर दैट पर्टिकुलर टारगेट एरिया, then also you can have the competitive advantage. So remember, whenever you are asked about the competitive advantage, क्वार्टर ने मेनली ये तीन चीज बताई थी, इनमें से दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तीसरी भी आप मेंशन कर सकते हो. ओके, नाउ कम्स द नेक्स्ट पार्ट. देखो डिफरेंशिएशन की इसमें ना एक अच्छी सी डेफिनेशन दी हुई थी, तो मैंने उठा ली. तो ये डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन है कि एक ऐसी कैपेबिलिटी जो आपके प्रोडक्ट्स को स्पेशल वैल्यू दे, एक स्पेशल फीचर ऐड करे. ओके, ये कुछ भी हो सकता है, एक आफ्टर सेल सर्विस भी हो सकता है, एक कोई पर्टिकुलर सर्विस. जैसे बारबेक्यू में क्या होता है, दे प्रोवाइड वेरी गुड सर्विस. व्हेन यू गो देयर, नॉट ओनली द फूड बट आल्सो द सर्विस विल एन्चेंट यू, विल एक्चुअली अट्रैक्ट यू. देन कम्स एज अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंशिएशन, आप एक हायर प्राइस चार्ज कर सकते हो, तो आपको यहाँ पे प्रीमियम मिल जाता है, मतलब एक प्रॉफिट मार्जिन आपका बढ़ जाता है. आपने स्पेशल R&D वगैरह की है तो उसका फायदा आपको इधर प्रीमियम प्राइस चार्ज करके मिल जाता है. Like in case you are having the same expenses as that of your competitors, but still you can charge extra because of the differentiated product that you are providing to your consumers. Okay guys, this was pretty simple. Let's move on to the next slide. Here we are talking about role of resources, capabilities and value creation in competitive advantage. तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि रिसोर्सेज कैसे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बनाता है, कैपेबिलिटीज कैसे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बनाती है, और वैल्यू क्रिएशन क्या है. लेट्स सी वन बाय वन. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज रिसोर्सेज. ओके, रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिसोर्सेज दो तरह के होते हैं, एक होता है टेंजिबल रिसोर्स, एक होता है इनटेंजिबल रिसोर्स. टेंजिबल ऐसा जिन्हें हम देख सकें, इनटेंजिबल ऐसा जिसे हम टच नहीं कर सकें. एक्चुअली टेंजिबल मतलब क्या होता है? टच करना. और इफ यू कैन नॉट टच अ रिसोर्स देन इट इज इनटेंजिबल. ठीक है, तो आप ये तो हमने अकाउंटिंग का लाइक 12th क्लास में ही पढ़ा था कि टेंजिबल और इनटेंजिबल क्या होता है, तो यू कैन इजीली मेक आउट व्हाट एक्चुअली इट इज. आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन इट. देन कम्स कैपेबिलिटीज. देखो कैपेबिलिटीज क्या होती है? व्हेन यू यूज दोस रिसोर्सेज, आपके पास कुछ रिसोर्स आए, आपने उसे यूज किया, देन यू एक्वायर कैपेबिलिटी इन दैट. आपकी एक उसमें एक कैपेबिलिटी बिल्ड होती है. Like when resources have been purposefully integrated to achieve a specific task or a set of tasks, then capabilities exist. Okay? Resource हो गया एक asset, जैसे production equipment आपके पास है. When you use the production equipment very efficiently, effectively, then that is a capability. Clear? So this task range from human resource selection, कि आप selection बहुत अच्छा करते हो, आपके पास human resource अच्छा है, that is your resources. But your selection, your training, etc. is good, then it is capability. Production, marketing, आपका प्रोडक्ट अच्छा है वो हो गया रिसोर्स, लेकिन आपकी मार्केटिंग अच्छी है वो होगी कैपेबिलिटी. देन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज, ये सब आपकी कैपेबिलिटीज में आ गई. तो आपको रिसोर्स प्लस कैपेबिलिटी विल हेल्प यू टू गिव वैल्यू क्रिएशन, विल हेल्प यू टू हैव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. ओके, आई होप दिस इक्वेशन इज प्रेटी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. So this may be examples like use of logistics. If logistics, you remember from the last video, it's transportation. It can be inbound as well as outbound. Okay. Effective and efficient control of inventories, customer service, merchandising, innovative marketing, product design, digital technology, etc. Okay, this is pretty simple. Now, resources and capabilities are not inherently valuable. है ना, ये अपने आप में वैल्यूबल नहीं है, लेकिन बट दे क्रिएट वैल्यू. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट. दे क्रिएट वैल्यू. When firms can use them to perform certain activities, it results into creative advantage. तो guys, अभी आप ये चीज रट्टा मार लो कि देखो रिसोर्सेज हुआ है प्लस कैपेबिलिटीज हुई है, this will lead to value creation, this will ultimately lead to competitive advantage. देखो आपके ना थोड़े डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं और लास्ट अटेम्प्ट से थोड़े बहुत केस स्टडीज टाइप दे आर आस्किंग. So, but you need to know more specific concepts. अगर competitive advantage पूछा जाए तो if you remember this, you can write everything. Okay, let's move on to the next part. देखो इसमें एक छोटा सा मॉड्यूल में डायग्राम दिया हुआ था. देखो competitive advantage है. competitive advantage कैसे बना? कैपेबिलिटीज जो ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंट है, ये रिसोर्सेज हो गए दोनों टेंजिबल और इनटेंजिबल, और इससे हमारे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बने, और ये दोनों लीड करते हैं हमारे वैल्यू क्रिएशन बनाने में हेल्प करेगा. इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात कही गई है कि इन चारों हमारे लिए हेल्पफुल होगा. ये दोनों, पता है मैं यहाँ पे ये जो चारों चीज लिखी गई है इन दोनों के लिए है. ओके, ये दोनों में ये चारों चीज होनी चाहिए, मतलब ड्यूरेबिलिटी, इमिटेबिलिटी,
एंड ट्रांसफरेबिलिटी एंड अप्रोप्रिएबिलिटी, जो डिटरमाइन करेगी कि क्या ये वैल्यू क्रिएशन या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बन सकता है या नहीं बन सकता। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी मतलब क्या हुआ कि वेदर दैट इज ड्यूरेबल means whatever you have. For example, your human resource is your competitive advantage. You have your CEO like he is considered as the greatest mind of the time, and he is particularly very good in marketing or other things which is helping the organization. Then if the CEO will be there for a longer period of time, will the CEO is going to retire or something, so आपकी जितनी ड्यूरेबिलिटी होगी उतना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में हेल्प होगा. अगर इट इज नॉट ड्यूरेबल देन यू हैव टू मेक एफर्ट्स टू एक्चुअली सब्स्टिट्यूट द सीईओ और यू हैव टू ट्रेन अदर पर्सन, जिसे हम कहते हैं सक्सेशन प्लानिंग आपको शुरू कर देनी चाहिए कि उसको बाद में सक्सीड कौन करेगा. देन कम्स इमिटेबिलिटी. इमिटेबिलिटी मतलब क्या होता है? इमिटेट करना. इमिटेट मतलब क्या हुआ? कॉपी करना. जैसे कि हमने उसमें पढ़ा था, इफ यू रिमेम्बर वी लर्न इन कोर कॉम्पिटेंस की कोर कॉम्पिटेंस इज समथिंग विच इज डिफिकल्ट टू इमिटेट. लेकिन क्योंकि अगर वो इमिटेट या कॉपी हो सकता है तो फिर वो कोर कॉम्पिटेंस रहेगा ही नहीं, लोग उसे कॉपी कर लेंगे. तो इस वजह से यू हैव टू सी दैट योर कोर कॉम्पिटेंस और योर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इट इज नॉट बीइंग कॉपीड बाय द कॉम्पिटिटर्स. इफ इट इज इजी टू कॉपी देन इट विल नो लॉन्गर रिमेन योर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, है ना. तो यू हैव टू मेक श्योर दैट इट इज नॉट imitable. So if your capabilities and resources are not imitable, then only they can lead to competitive advantage. देखो या तो कॉपी कर सकते हैं या फिर उसे खरीद सकते हैं. जैसे कि आपका सीईओ है, उसे उन्होंने खरीद लिया, या फिर आपके पास एक ऐसा रिसोर्स है, एक ऐसी मशीन है, उसे उन्होंने भी खरीद लिया, तो वो आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं रहेगा. सो अगर वो ट्रांसफरेबल है देन ऑल्सो इट विल नॉट बी योर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. अप्रोप्रिएबिलिटी यहाँ पे एक अच्छी सी डेफिनेशन है. It refers to the ability of the firm's owners to appropriate the returns on its resource base. मतलब जो रिटर्न्स आते हैं उस पर्टिकुलर रिसोर्स के, उसे वो यूज कर सकते हैं या नहीं. मतलब वो रिसोर्स उनके पास है लेकिन उसके रिटर्न्स है वो यूज नहीं कर पा रहे. इट इज गोइंग टू द गवर्नमेंट, इट इज गोइंग टू द कॉपीराइट ऑनर, जिससे आपने उसको यूज करने के लिए राइट्स लिए हैं या लॉयल्टी बेसिस पे आप काम कर रहे हो, व्हाटएवर. तो आपके पास अगर रिटर्न्स नहीं रह रहे हैं तब वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं रहेगा. क्यों? क्योंकि उस रिटर्न से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ ही नहीं पाई, क्योंकि वो रिटर्न्स आपके पास रहे नहीं, तो वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं रहेगा. तो इन दोनों चीजों का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में बदलने के लिए जरूरी है कि ये ड्यूरेबल हो, जरूरी है कि इमिटेबल ना हो, मतलब इट कैन नॉट बी इमिटेटेड. ओके, जरूरी है कि ट्रांसफरेबल ना हो, मतलब इट कैन नॉट बी ट्रांसफरेबल, द अदर पर्सन कैन नॉट एक्वायर इट. जरूरी है कि अप्रोप्रिएबल हो, मतलब जो आपके पास इन पर्टिकुलर रिसोर्सेज और कैपेबिलिटी से रिटर्न्स है उसे आप यूज कर सको, है ना, अपने ऑर्गेनाइजेशन में यूज कर सको. सो दिस इज अबाउट द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड रिसोर्स एंड कैपेबिलिटी थिंग. लेट्स मूव ऑन टू द अनदर स्लाइड. दिस इज अबाउट वैल्यू क्रिएशन. जैसे कि हमने देखा कि जो आपके रिसोर्स प्लस कैपेबिलिटी बस लीड टू वैल्यू क्रिएशन. तो आपके लिए वैल्यू क्रिएशन है क्या? ओह माय गॉड, दैट्स अ बिग क्वेश्चन. व्हाट इज दिस वैल्यू क्रिएशन? You remember this term value. This value is being actually imported from value chain analysis. Okay, so this value chain analysis में value आया है. उस समय मैंने आपको बताया था value कोई ऐसी एक्टिविटी, कोई ऐसी परफॉर्मेंस, कोई ऐसी चीज है जो आप अपने कंज्यूमर को प्रोवाइड करते हो, ये यूटिलिटी है. तो देखो वैल्यू क्रिएशन क्या होता है? इज एन एक्टिविटी और परफॉर्मेंस बाय फर्म टू क्रिएट वैल्यू और यूटिलिटी. ओके, यूटिलिटी that increases the worth of goods. Okay, जो अपने गुड्स की वैल्यू बढ़ाए, उसकी कीमत बढ़ाए, और जो कंज्यूमर के लिए उसकी कीमत बढ़ाए. देखो इसमें बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है ये कि ये आपका प्रोडक्ट है कोई, फॉर एग्जांपल इट इज सम प्रोडक्ट, आपको इनपुट मिला. ओके, इनपुट मिला, उसमें आपने ना इनपुट रॉ मटेरियल खरीदा, रॉ मटेरियल में आपने लेबर लगाया, लेबर में आपने बाकी सब चीजें लगाई, मशीन लगाई एक्सेट्रा. तो आपका एक फिनिश गुड रेडी हुआ. उस फिनिश गुड की ये कॉस्ट आई, है ना, ये सब कुछ करने में उसकी कॉस्ट आ गई. दिस इज द फर्म्स कॉस्ट ऑफ वैल्यू क्रिएशन. मतलब फॉर एग्जांपल जो पुराना वाला टायर वाला एग्जांपल है. ओके, तो उन्होंने रबड़ लिया, रबड़ में उन्होंने प्रोसेसिंग किया, वो सब किया, तो आपका टायर बना. तो ये फर्म की कॉस्ट आ गई वैल्यू क्रिएशन की, मानो 100 रुपए. फिर उसके बाद फर्म क्या करती है? उसमें प्रॉफिट ऐड करती है, जो फर्म का मार्जिन होता है. मानो उसने ऐड किया उसका 20 रुपीज, इट हैज एडेड एज अ प्रॉफिट और फर्म्स मार्जिन. सो नाउ द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज 120. अब पता कंज्यूमर उसको क्यों खरीदेगा? कंज्यूमर उसे जब भी खरीदेगा जब उसको पास वैल्यू उसकी मोर देन 120 होगी. आप भी
whenever you go to buy a product, you actually compare the product. कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हो ना, वही कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है. जैसे आप एक शर्ट खरीदने जा रहे हो, उसकी कीमत है 1000 रुपए. अगर उसके बेनिफिट आपको मोर देन 1000 नजर आए कि आप उसे इस तरीके से यूज कर सकते हो कि इट्स वैल्यू इज मोर देन 1000 to you, then only you find it worth to buy, है ना. If it is less than 1000, then you will not buy the product. In the same way here, if the consumer is finding it more than 120, तो मानो उसे ऐसा लग रहा है कि हाँ ये मेरे 150 रुपए तक का काम का है, तो ये जो 30 रुपए है ना, वो कंज्यूमर का सरप्लस है, वो कस्टमर का सरप्लस है जिसे उसे एक्स्ट्रा में मिला है. जितना कस्टमर को एक्स्ट्रा में मिलेगा ना, उतना वो हैप्पी कस्टमर होगा, उतना वो खुश होगा और अगली बार आपका प्रोडक्ट बाय करेगा. वैसे ही होता है एप्पल के लिए. एप्पल इट इज हाईली प्राइस्ड, बट स्टिल कंज्यूमर्स बाय एप्पल बिकॉज दे गेट समथिंग इन रिटर्न. मींस दे एक्चुअली ये जो कस्टमर सरप्लस जो वो डिटरमाइन करते हो ज्यादा होता है. ये पता है, ये सब्जेक्टिव है. इट चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. एक पर्सन के लिए वो चीज वर्दी हो सकती है, दूसरे पर्सन के लिए वर्द नहीं हो सकती, बिकॉज सबका अलग अलग क्राइटेरिया होता है चीजों को जज करने का. वो कोई इनोवेशन को ज्यादा प्रायोरिटी देता है, कोई कॉस्ट को ज्यादा प्रायोरिटी देता है. तो एवरीबडी हैज देयर ओन पर्सपेक्टिव. ओके, सो दिस मे चेंज. So more you create the value for your customer, more will be the competitive advantage to you. More will be your profitability. More will be your sales, and accordingly. Okay. So I hope you get this. What is value creation? It is particularly providing value to your consumers. और value समझ के आप कैसे होगे? Which is more than the price. जो consumers को ज्यादा मिले. देखो अब इस पूरी वीडियो को जल्दी से समझ लेते हैं. इस वीडियो में हमने बात की है, वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में पहली चीज हमने बात की वो थी व्हाट में मैंने आपको बताया कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इज समथिंग मींस एन एडवांटेज और बेनिफिट दैट यू हैव ओवर योर राइवल्स व्हिच इंक्रीजेस योर प्रॉफिटेबिलिटी, है ना. मतलब सुपीरियर परफॉर्मेंस होती है, प्रॉफिटेबिलिटी होती है, वो वाई में सारा लिख देना. सुपीरियर परफॉर्मेंस है, प्रॉफिटेबिलिटी है, you are getting an additional advantage over your consumers, competitively established है, strategic advantage आपको मिला है, opportunities exploit कर सकते हैं, etc. बहुत सारी बातें लिखी जा सकती हैं. उसके बाद में हमने देखा how, very important. how में बहुत सिंपल सी बात हमने की, resource plus capabilities lead to value creation which leads to competitive advantage. अब इसमें ना आप समझा देना कि resource क्या होता है, फिर समझा देना कि कैपेबिलिटी क्या होती है, रिसोर्स क्या होता है. रिसोर्स में दो बता देना. रिसोर्स होते हैं दो तरीके के, टेंजिबल है, इनटेंजिबल है. कैपेबिलिटीज में एग्जांपल्स बता देना, खूब सारे एग्जांपल्स किए थे अपन ने. फिर वैल्यू क्रिएशन में आप समझा देना वैल्यू क्रिएशन, व्हाट इज वैल्यू क्रिएशन. फिर सुंदर सा डायग्राम बना देना जिसमें हम बात कर रहे हैं कॉस्ट, प्राइस और वैल्यू की, वो बता देना. फिर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आ जाएगा, मतलब ये रिसोर्स प्लस कैपेबिलिटी, हाउ इट लीड्स टू वैल्यू क्रिएशन एंड दैट इट लीड्स टू कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. जो एक और पर्टिकुलर डायग्राम आपने देखा वो आप बना देना. If you want high marks in strategic management, then you should know how to make diagrams. इस तरीके से उसे presentation करोगे तो you'll get good marks in strategic management. So this was a small video about the competitive advantage. Quite important topic for strategic management. If you like this video, don't forget to comment, guys. Please do comment, because that is the only way I come to know that you are watching the videos, what you need extra in the videos, etc. So see you next time in the next video. Till then, stay healthy, be happy. Bye.